देखो अब हम पढ़ने वाले हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड वी नो दैट सर रमन मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन इंडियन साइंस एंड विथ इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी ही इज द legend you can say he is the goat, greatest of all time. So Sir Raman proposed an effect which we call Sir Raman effect. Very interesting, very interesting, and very important from the exam point of view. So what we study in this is, let's just get a brief introduction about it. When a beam of light passing through a substance, okay, a small amount of radiation or energy is scattered. Very important, scattered. The scattering persisting if all dust particles or any other extra matter removes from the substance. मीन्स क्या है कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो स्कैटरिंग हो रही है, और स्कैटरिंग केवल और केवल ओनली और ओनली किससे हो रही है, मैटर या सब्सटेंस की वजह से. वाई इट्स सो? बिकॉज इवन इफ वी आर रिमूविंग ऑल द डस्ट पार्टिकल और अदर एक्स्ट्रा मटेरियल वी कैन सी द Raman scattering. So it is proof that the scattering was happening because of the matter or the substance only, not because of the any other dust or any other particles. Now let's dive into it. If a monochromatic radiation of very narrow frequency band is used, then the scattered radiation energy, which consists almost entirely radiation of the incident frequency, which is called Rayleigh scattering. तो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं, अपन रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, तो जो स्कैटर्ड होगी वो क्या होगी, सेम फ्रीक्वेंसी की चली जाएगी. इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के, तो उसको बोलते हैं Rayleigh scattering. कौन सी स्कैटरिंग, Rayleigh scattering. But in addition, if certain discrete frequencies above and below that of incident frequency will be scattered, and that is known as. But if we are having certain discrete frequencies in the spectrum which are above and below of that incident or Rayleigh frequency, then we call it Raman effect. Now the explanation, we need to explain this. So first of all, quantum theory of Raman effect. Now we are using a detector placed at right angles in the incident. This is the incident beam and this is right angle. So what will happen? This is, suppose a photon is incident, then what will happen? Energy will, for emission energy will emit how much energy? Incident plus delta E, which will be equal to anti-Stokes line. And for absorption, H minus delta E, which will be for Stokes line. Now collision between photon and molecules. What is happening? Elastic collision is happening. Photon deflected with same incident mu, which is called Rayleigh scattering. And for elastic scattering, photon deflected with energy H mu plus delta E, which is anti-Stokes, which will be less intense, and H minus delta E, which is Stokes line, more intense, which we call Raman scattering. Now classical theory of Raman effect, which we call it molecular polarizability. Now when a molecule is put into a static electric field, it suffers from distortion and charge gets separated. Very easy peasy. Suppose we are having a molecule and static electric field is applied to it. It's suppose वही polarization जो होता है वो, this separation of charge center leads a induced dipole moment. Got my point? And the molecule is said to be polarized. The dipole moment directly proportional to E, same Hp directly proportional to E, Px absolute chi, we know it. So mu equal to L phi. L phi is probability of medium, mu is induced dipole moment, and E is applied electric field. Now if we apply a sinusoidal electric field, then what will happen? E equal to E naught sin 2 pi mu into T, and mu equal to alpha E naught sin 2 pi mu into T. Such an oscillating dipole emits radiation of its own frequency, and that is the classical explanation of Rayleigh scattering. So what will happen? ये इसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा कौन? डाइपोल. वो जब ऑसिलेट करेगा क्या करेगा? इमिट कर देगा रेडिएशन को, और जो इमिट करेगा उसकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, खुद वाली फ्रीक्वेंसी ये वाली. Then that is called classical same frequency Rayleigh scattering हो जाएगी. In addition, molecules undergo some internal motion, very important, which will be vibration or rotation. Got my point? यहाँ थे oscillation, यहाँ को है vibration and rotation, which change the polarity periodically. Now suppose we are having a vibration frequency mu vibration which change in the polarity. So alpha will be alpha naught plus beta sin 2 pi mu vibration to T. Alpha naught will be
equilibrium polarity, and beta will be rate of change of polarity with the vibration. Now let's take the solution of it. We have alpha is into E is E naught sin 2 pi mu into t, alpha इक्वल टू अल्फा नोट प्लस इंटरनल मोशन जो वाइब्रेशनल रोटेशन होगी वो। खोल लो इसको, ई नोट यहाँ से इसको बोलेंगे अपन रेले स्कैटरिंग सेम फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होगा साइन सी और साइन डी, तो कोस सी माइनस डी बाई टू और कोस सी प्लस डी बाई टू। फ्रीक्वेंसी कम होगी स्टोक की और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी एंटी स्टोक की। इन ऑर्डर टू बी रमन एक्टिव ए मोलिकुलर रोटेशन वाइब्रेशन मस्ट बी कास्ट सम चेंज इन द सेम जो हमने पढ़ा था। सो रमन एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए अपने को, मस्ट काज सम चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ पोलैरिटी में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। चलो नो वी आर setting out pure rotational. So for linear molecules, what is the EJ? BJ J plus 1 centimeters inverse, J equal to quantum number 0, 1, 2. So selection rules will be delta J equal to 0 and plus minus 2, J equal to plus 2 for S branch, and delta E equal to EJ plus 2 minus EJ, which is S line, and delta equal to B, and J plus 2 minus J करेंगे तो यहाँ से रख दो J plus 2 माइनस, तो यहाँ J plus 2 और J plus 3 माइनस सेम, तो कितना आएगा 4J plus 6। और जी क्या होता है देखो, डेल्टा J 0 Q ब्रांच माइनस 1 P ब्रांच प्लस 1 R ब्रांच प्लस 2 S ब्रांच। सो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल व्हाट विल हैपन, ओनली डेल्टा J क्या होगा 0 से प्लस माइनस 2, और अपन S ब्रांच के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। S ब्रांच के लिए कितना होगा B 4J, किसके लिए है ये S ब्रांच, मीन्स J इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स में करें B 4J प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स वही, और यहाँ क्या होगा वेव नंबर बी एक्सटर्नल डेल्टा एस, बी एक्सटर्नल अपने पास ये एस ब्रांच का, ये एक्सटर्नल वेव नंबर ऑफ एक्साइटिंग रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन, और B 4J प्लस 6 प्लस लगाएंगे तो एंटी स्टोक आ जाएगी और एंटी स्टोक आ जाएगी। देखो ये प्योर रोटेशनल क्या हो रहा है, J इक्वल टू 0, 1, 2 से लेके 4 तक, तो अगर प्लस 2 का तो क्या जाएगा 0 से लेके 2, 2 माइनस 0, यहाँ देखो 3 माइनस 1, 4 माइनस 2, डेल्टा प्लस 2 माइनस 2 कब होगा, देखो यहाँ से 2 माइनस का 4 फाइव माइनस इनिशियल, 5 माइनस इनिशियल, 1 माइनस का 3 और 0 माइनस का 2। नाउ डेल्टा म्यू एस इक्वल टू म्यू एक्सटर्नल माइनस B 4J प्लस 6, स्टोक लेंथ विल बी डेल्टा J इक्वल टू 0, डेल्टा म्यू एस इक्वल टू म्यू एक्सटर्नल माइनस 6B। अब देखो ये क्या है, रिले स्कैटरिंग। क्या है ये रिले स्कैटरिंग, सेंट्रल लाइन क्यू लाइन, इधर क्या है स्टोक और इधर क्या है एंटी स्टोक। देखो इसको अपन माने P1 P2 माने, तो रिले स्के मतलब क्यू लाइन से इधर क्या बोलते हैं अपन इसको P है ना, और इधर क्या होता है R और S है ना। तो फर्स्ट की कितनी होगी 6P, कितनी होगी प्योर रोटेशनल में पहली 6P, और सब लाइन के बीच में कितना होगा 4B। तो अगर रेले से नापे इसकी तो 6B और फिर 4B, याद रखना है। Now Raman spectroscopy is इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक टू द माइक्रोवेव एंड infrared spectroscopy. Now since we know that homonuclear diatomic molecules give no microwave and infrared spectrum, ठीक है। ऐसा क्यों है ये अपने को पता है, ऐसा इसलिए है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दे आर नॉट पोजेसिंग एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट, and as well as they are not having any change in dipole moment, so they are not showing microwave rotational infrared vibrational spectra. Got my point? Whereas homonuclear diatomic molecules gives the rotational Raman spectra. ठीक है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा दे रहे हैं, कौन से दे रहे हैं rotational Raman spectra. Thus the Raman spectroscopy is the complementary technique to the micro and infrared. कहो जाओ
जो माइक्रो इन्फ्रारेड नहीं दे रहा है वो भी कौन सा दे रहा है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा दे रहा है। चलो थोड़ा सा है ना गलत लगता है, माई थ्रोट प्रॉब्लम, सम कप सिरप आई नीड आई थिंक, but let's finish it first. If the molecules has center of symmetry linear, then the effect of nuclear spin will be observed as seen was infrared spectroscopy. Thus O2 CO2 spin is of a spin of oxygen is zero, every alternate rotation level is absent. समझ में आ रही है बात कि जब सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर स्पिन देगा, मीन्स इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्ले में आ जाएगी। सो O2 और CO2 जो है उसका स्पिन क्या होगा, जीरो, एवरी अल्टरनेट रोटेशन लेवल इज एब्सेंट, मीन्स 2p से क्या हो जाएगा 4p में चला जाएगा, वो अपन पहले पढ़ा वही ना। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रो अभी तक अपने रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा, अब वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। तो वो H2 लेते हैं, एस्टिमेटेड टॉप मॉलिक्यूल है अपने पास, ऑल द 3 वाइब्रेशनल मोड ऑफ H2 आर रमन एक्टिव। CO2 लेट्स से लीनियर ट्राइमेटिक मोलिकुलर CO2 अपना देखो, μ1 क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड, μ2 बेंडिंग मोड और μ3 क्या है, एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड। अब देखो वाइब्रेशनल रोटेशन के लिए μ1 क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, वाइब्रेशनल में एक्टिव, रमन में इस वाइब्रेशन में इनएक्टिव, रमन में एक्टिव हो जाएगा। μ2 बेंडिंग मोड है, ये वाइब्रेशन में क्या होता है, एक्टिव होता है, रमन में क्या है, इनएक्टिव है। एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो हो रही है μ3, ये वाइब्रेशन में क्या है, एक्टिव, और रमन में क्या है, इनएक्टिव। Now, rule of mutual exclusion. Rule of mutual exclusion. If a molecule has center of symmetry CO2, then Raman active vibrations are infrared inactive, and vice versa. If there is no center of symmetry, then some vibrations may be both Raman and infrared active. मीन्स क्या हो रहा है कि कोई मोलिक्यूल है अपने पास, उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो क्या होगा, रमन एक्टिव वाइब्रेशंस होंगे, इन इंफ्रारेड एक्टिव एंड वाइस वर्सा, मतलब बोथ है ना कि अपने पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो रमन एक्टिव वाइब्रेशन से, और अगर इंफ्रारेड एक्टिव है तो क्या हो जाएगा, वो रमन एक्टिव हो जाएगा। समझ आ रही बात, अगर रमन एक्टिव है तो इंफ्रारेड इनएक्टिव है, इंफ्रारेड एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव है, रमन एक्टिव हो जाएगा। नाउ इफ देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री देन सम वाइब्रेशंस में बी बोथ रमन एंड इंफ्रारेड एक्टिव। यहाँ पे एक ही हो रहा है, रमन एक्टिव है तो इंफ्रारेड इनएक्टिव है, इंफ्रारेड एक्टिव है तो इनएक्टिव है, रमन एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो तो फिर कमाल होगा। इफ ए मोलिक्यूल हैज नो कॉमन लाइन्स ऑफ रमन एंड इंफ्रारेड सिमेट्री स्पेक्ट्रा, दिस implies दैट molecule has center of symmetry. Now CO2 having center of symmetry, same. Now N2 linear but not center of symmetry. SO2 क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। द एनर्जी लेवल्स कोरस्पोंडिंग टू द रोटेशनल मोशन ऑफ ए मोलिक्यूल आर दिस, if B is rotational constant, pure rotational rate transition follows the section rules, this the separation between closure strokes and anti-stroke lines। देख लो, अभी बताया था। हाँ रहने दो, आ रहा हूँ, अब क्या पीऊँगा मैं। कितना होता है, 2p होता है। रोटेशनल मोशन ऑफ ए मोलिक्यूल EJ है अपने पास, एंटी-स्टोक के लिए निकालेंगे अपन, यहाँ से कितना आएगा, 12 भी आएगा। सुन मेरी बात, किसके लिए, 0 और +-2 के लिए। देख लो 0 और +-2 के लिए, ये रहा, ये +2 के लिए कितना है, 6 है, तो -2 के लिए कितना होगा, इधर 6 हो जाएगा, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 कहाँ गया क्वेश्चन अपना, ये रहा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट रमन एक्टिव, ये वाला है ना। होमो न्यूक्लियर डायटोमिक नीलिन है, परमानेंट डायपोल मोमेंट कितना है, 0, तो नए चेंज डायपोल मोमेंट कैन बी एक्टिव। मीन्स अगर डायपोल मोमेंट भी 0 है, चेंज भी 0 है, तो क्या होगा, IR इनएक्टिव होगा। द फर्स्ट स्टोक लाइन्स ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड एट 12.96, कंसीडर द रिलेटेड अप्रोक्सीमेशन, रोटेशनल कांस्टेंट इज गिवन बाई। फर्स्ट लाइन कितने पे आती है, 6p पे आती है,
मेन तो रैली होती है इसका नाउ। चलो अपने 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 वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायोटिक मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू बोन अपन उसमें कितना ये इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन रोटेशन। वो डेल्टा क्या है? वाइब्रेशन इतना हो 10⁻⁻⁷, और रोटेशन कितना हो 10⁻⁶। वाइब्रेशन को बोलते हैं कोरस, ज़्यादा वैल्यू कवर करेगा, और रोटेशन क्या है? फाइन स्ट्रक्चर, फाइन कर देगा उसको ना। वाइब्रेशनल कोएफिशिएंट क्या होगी? ई टोटल इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल। ई टोटल कितना इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल का देख लो, V+1/2 ओमेगा ई, V+1/2 का स्क्वायर ओमेगा ई का ई। टोटल कितना है? डेल्टा इलेक्ट्रिक डेल्टा वाइब्रेशनल। सोल्व कर लेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। कोरस को ग्रोस भी बोल देते हैं। क्या है? अपर इलेक्ट्रिक एनर्जी लेवल है, उसको क्या है? लोअर है। और डेल्टा में क्या हो सकता है? एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। नो इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा। फ्रैंक कोटेन प्रिंसिपल पढ़ना है। क्या है फ्रैंक कोटेन प्रिंसिपल? इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इफ इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन takes place so rapidly that a vibrating molecule doesn't change its intermolecular distance, internuclear distance during the transition। बस यही है। देखो कैसे, ये मान लो कोई एनर्जी लेवल है एक्साइटेड, और ये अपना ग्राउंड है। यहाँ से उनकी इंटर जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियर डिस्टेंस, वो ये इक्विलिब्रियम में। तो जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिस्टर हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो अपना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, यहीं से यहीं सीधा सीधा आ गया। तो देखो यहाँ से कौन सा होगा? ये आर नॉट इक्विलिब्रियम पे, ये 0 से 0 ट्रांजिशन हो गया है ना, यहीं पे है दोनों। और इसके बाद तो 1 0 2 0 होते रहेंगे ऐसे, कोई मतलब। सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इक्वल इन द अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। देखो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या जा रहा है? जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हुई तो कौन सी डिस्टेंस ये थी? ये ऊपर जाता कहाँ जा रहा है? 3 पे जा रहा है। मतलब ट्रांजिशन कौन सा होगा? प्रेफरेबल 3 to 0 होगा। मेन कौन सा होगा? सो अपर स्टेट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज लिटिल लेस देन दैट ऑफ इन लोअर स्टेट। कौन सी है? लो। सो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस है, क्या खिसक गई, तो थोड़ी लोअर हो गई और वहीं पे आएगी। बाकी सब चलेंगे सही। 3 0 मेन आ जाएगा, उसके बाद 2 0 4 0। अब क्या होगा जब ये इधर आ जाए? तो यहाँ पे क्या हुआ? जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थी वो यहाँ से किधर आ गई? थोड़ी सी इधर आ गई। समझ में आ रही है बात को? सो अपर स्टेट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिटिल ग्रेटर, यहाँ से थोड़ी सी इधर आ गई, ग्रेटर देन द लाउडर लोअर स्टेट। तो ये मेन हो जाएगी कौन सी? 2 0, बाकी 1 0 3 और ले लो। अब देखो क्या बेंड लग स्ट्रेच चला गया। इसमें क्या हो गया? यहाँ से जब गया ट्रांसलेट सीधा बेंड में चला गया, बिल्कुल यहाँ पे। सो अपर स्टेट डिस्टेंस इज अप्रिशिएबली वेरी लार्ज। ठीक है, तो जब इधर खिसकेगा तो जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी, और जब इधर खिसकेगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो यहाँ पे बराबर था। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। हियर वी इग्नोर द सेंट्रीफ्यूगल टर्म ऑफ रोटेशन एंड रोटेशन Bj+1 सेंटीमीटर इनवर्स टोटल इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल और रोटेशनल। रोटेशनल का रख दो Bj+1, तो यहाँ पे डेल्टा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल। तो इसको अपन ने कर दिया म्यू बार म्यू डबल बार सेम। और ये क्या कर रहा है? वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, मतलब इसमें वाइब्रेशनल दोनों आ गए, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन। सिलेक्शन रूल क्या है फाइन स्ट्रक्चर के लिए? डेल्टा म्यू में कोई रेस्ट्रिक्शन, डेल्टा चाहिए 0 + होगा, मतलब +2 नहीं हो सकता, मतलब एस हो ही नहीं सकता, ओनली PQR हो सकती है, क्यू मेन हो जाएगी। पी ब्रांच क्या होगी? -1 होगा, तो पी ब्रांच फाइनल माइनस इनिशियल। अपने को फाइनल कौन सा है? मतलब फाइनल कौन सा है? जेफ प्राइम है। और इनिशियल कौन सा? डबल प्राइम। कितना -1 रख दो, तो ये अपने पास वैल्यू आएगी। आर ब्रांच में क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा है यहाँ पे? +1 है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? जे प्राइम इक्वल टू, ये वाला उल्टा हो जाएगा इसका, जे माइनस डबल +1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? जे प्राइम इक्वल टू डबल प्राइम +1। Got it. Now clubbing these two, we are having B plus B bar, B minus B double bar। वही पॉजिटिव के लिए R ब्रांच है और नेगेटिव के लिए प्री ब्रांच है। मतलब P ब्रांच में ग्राउंड स्टेट वाला ज़्यादा होता है और R ब्रांच में एक्साइटेड स्टेट वाला ज़्यादा होता है।
पी ब्रांच नेगेटिव, आर ब्रांच पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आर ब्रांच में क्या एक्स्ट्रा रजिस्टर वाला, ठीक है। नाउ क्यू ब्रांच में क्या होगा, 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। द फोटेड डायग्राम, द एक्सप्रेशन फॉर पी क्यू आर एंड क्यू आर टर्म्स ऑफ स्मॉल वेरिंग कंटिन्यूस पैरामीटर्स पी एंड क्यू। रख दो सेम, यहाँ पे पी रख दो और यहाँ पे पी स्क्वायर रख दो। यहाँ पे था ना, इसको हटा के अपने पी और पी स्क्वायर रख दिया। और क्यू के लिए क्या रख दो, क्यू और क्यू स्क्वायर रख दो। ये क्या है, पैराबोलिक है, वाई स्क्वायर 4x, पी पॉजिटिव नेगेटिव क्यू पॉजिटिव ओनली, सो एप्लीकेशन कैन बी सेम। पैराबोला में आ गई है। इसके वर्टेक्स क्या होंगे, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। ये क्या है, एक्स एक्सिस पे, और पी एन क्यू है वाई एक्सिस पे। ए इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, वो कौन सा, जो फोटेड डायग्राम यूज फॉर प्रॉपर्टी ऑफ फोटेड डायग्राम इज दैट बेंड हेड, याद रखना है, लाइज इन द वर्टेक्स पी आर पैराबोला। ये फोटेड डायग्राम की अपने को यूजेबिलिटी है। पोजिशन ऑफ वर्टेक्स हेड बेंड, इसको 0 करो तो क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है अपना। 1-1/2 पी प्लस पी प्राइम बी माइनस। अब देखो सारा खेल इसका है। देखो क्या हो रहा है, अगर बी प्राइम एक्साइटेड वाला कम हो जाए, हायर स्टेट वाला कम हो जाए लोअर से, तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पी प्राइम पॉजिटिव हो जाएगा। पी पॉजिटिव होते क्या होगा, मीन्स जो अपनी अपर स्टेट है उसका इक्वी जो इक्विलिब्रियम बॉन्ड है वो लेंथ है लॉन्गर है, क्या है, लॉन्गर है। पी पॉजिटिव होते क्या है, लॉन्गर है, ठीक है। और कहाँ में गया, आर ब्रांच में गया है, एम पॉजिटिव होती, और यहाँ पे एम नेगेटिव हो जाएगा। ये एम नेगेटिव कौन से, प्री ब्रांच में, बेंडेड इन पी रीजन। ये आर ब्रांच और ये पी ब्रांच, ऊपर वाला आर है और ये नीचे का पी। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, गुड।